we have to start. Okay, for given na, right? Four remarks already discussed yesterday on the conditional probability. In continuation of that yesterday's class, we are writing the next remark, that is remark number 5, based on conditional probability, that is PS upon B. PS upon B. This you can write P, like A upon B, you can write P, B upon B. This is equal to 1. PS upon B, you can write PB upon B equal to 1. Because S and B intersection will give the formula of PA by B is PA intersection B, and A intersection B is S intersection B, and B is a subset of S. So small set will be their intersection, so B by B. डोंट थिंक दैट बी से बी कट जाएगा ना, ऐसा मत कर देना, ये कोई इवेंट्स हैं, नंबर्स नहीं है, रियल नंबर्स नहीं है कि आप बी से बी को कट कर दें, ठीक है, इक्वल टू 1. Remark number 6, probability of conditional probability, of course it will be between 0 and 1. As usual, we are writing probability is always in between 0 and 1. We can use the addition theorem formula that we studied last year in 11th class for this also. If ABC are three events of the sample space such that PC is not equal to 0, then P of A union B union C, P of A union B union C, these are the remarks will be used, very useful for the competitive exams also. Directly you can use these formulas. P of A union B union C, you can write A union B upon C, sorry 2 के लिए लिख रहा हूं मैं, P A union B, not for 3, I am writing for the two sets A union B upon C, means A और A या B के होने के probability happening of A or B when it is known that C is already occurred. C हो चुकी है, मतलब C is the sample space for, तो A और B के होने की प्रोबेबिलिटी जबकि C हो चुकी है. अगर मैं 11th क्लास की बात करूं, अगर आपसे ऐसा पूछा जाता था तो आप क्या लिखते थे पिछले साल, जबकि A और B म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होती थी तो प्लस आ जाता था, और अगर पार्शियली ओवरलैप इवेंट्स होती थी तो क्या लिखते थे, PA प्लस PB माइनस P इंटरसेक्शन B. 11th क्लास लोकल, लोकल जिसे आप बोलते थे, एडिशन थ्योरम, याद आया, ये 11th क्लास की बात लिखी है मैंने. सिमिलरली अगर हम इसको A और इसको B लिख लें तो ये वाला फॉर्मूला इस पे यूज कर सकते हैं. ये इसलिए बताया है कि A अपॉन, क्या लिख सकते हैं हम इसे, A अपॉन C एक्सक्यूज मी, PA अपॉन C प्लस PB अपॉन C माइनस PA इंटरसेक्शन B intersection A intersection B upon C. Similarly, this formula used. Okay. If A and B are disjoint events, disjoint sets, mutually exclusive events, then A intersection B equal to 5 and PA intersection B 0, then it will become the addition theorem on probability. So you can write here P A union B upon C equal to PA upon C plus P B upon C. This also you can use. Blur? Okay.
Okay, wait. Now, clear? Okay. If A and B are independent events, then remark number 7. If A and B are independent events, कल बता दिया था मैंने आपको independent events with replacement, independent events, then first part A and B naught, second A naught and B, third point A bar and B bar means A naught is there. Vedant Maheshwar is there. Vedant Maheshwar is there. Vedant Maheshwari. Yesterday he was also in the class. Even I asked not to attend my class. Now no need of attending this probability chapter. That is your punishment. You study from yourself only or from your friends or from YouTube. Many available. Better than me. If A and B are the independent events, then first A and B bar and A bar and not B and A bar and B bar are also independent events. अगर A और B इंडिपेंडेंट है ना तो A और B बार भी A एंड B बार भी A बार एंड B और A बार B बार मतलब नेगेशन इनके ऊपर लगा दें किसी एक पर या दोनों पे तो वो भी कैसी होती है इंडिपेंडेंट इवेंट्स होती है। आपको देखो कल रिमार्क नंबर 2 या 3 में कहीं ना कहीं मैंने आपको ये लिखाया होगा पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू पी ए इंटू पी बी फॉर इंडिपेंडेंट इवेंट। यस और नो देखो कौन सा रिमार्क है पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू पी एंड पी बी इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। 4 रिमार्क में कहीं ना कहीं होगा जरूर पक्का। Just see in the studied class. Okay, remark number 4 था ना। Therefore, you can use this result on क्योंकि इंडिपेंडेंट इवेंट्स को चेक करने का यही तरीका होता है। ए बार एंड बी को हम पी ए बार इंटू लिख देंगे ऐसे लिख देंगे मतलब इंटू कर देंगे उसके अंदर इंटरसेक्शन को हटाकर बिकॉज ऑफ इंडिपेंडेंट इवेंट्स। हम बोल रहे हैं ना इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं इसलिए। Take the screenshot. Remark number 7. If A1, A2, A3, AN dash AN are independent events, then you can write A1 bar, A2 bar, A3 bar, AN bar are also independent events. Therefore, P of
अगर हमको इनकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करना हो, इंडिपेंडेंट इवेंट है पी ए वन बार, ए टू बार, ए थ्री बार, intersection a n bar, you can write it p a1 into p a2 p a3 p a n, मल्टीप्लीकेशन कर देंगे सबकी प्रोबेबिलिटी का। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, आपको पता है 1 माइनस पी ए वन, इसे हम लिख सकते हैं 1 माइनस पी ए टू, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस पी ए एन। मतलब आपके पास 3 4 5 10 इवेंट्स हैं जो इंडिपेंडेंट है, तो उनके नेगेशंस अगर हम सबके ले लें नॉट हैपनिंग का, तो वो भी कैसी इवेंट्स होती हैं, इंडिपेंडेंट होती है। और इंडिपेंडेंट इवेंट होती है ना, तो इंटरसेक्शन को किस में चेंज कर सकते हैं, मल्टीप्लीकेशन में। ये देखो इंटरसेक्शन है ना, वो सब किस में चेंज हो जाएंगे, मल्टीप्लीकेशन में। और फिर हम जानते हैं पी ए बार को हम क्या लिखते हैं, 1 माइनस पी ए। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट बन गया है, बहुत क्वेश्चंस में काम आएगा आपको सॉल्व करने में। 1 माइनस पी ए वन, 1 माइनस पी ए टू। ठीक है, इसका मतलब क्या है, नॉट हैपनिंग ऑफ एनी वन ऑफ द इवेंट। ए वन भी नहीं है, ए टू भी नहीं है, मतलब पी नन ऑफ द इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ द नन ऑफ द इवेंट। जितनी भी इवेंट्स दे रखी है उसमें से एक के भी नहीं होने की प्रोबेबिलिटी। मतलब आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, देखो मान लो 3 स्टूडेंट है क्लास में, 3 स्टूडेंट्स आर इन द क्लास, देयर आर नंबर ऑफ स्टूडेंट, बट आई एम आस्किंग वन क्वेश्चन टू द 3 स्टूडेंट। Okay, I have given one mathematical problem to the 3 students. Please solve this mathematical problem. And तीनों को ये वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाए। None of them solve that questions. All 3 fails to solve that question. इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज आर गिवन। एक स्टूडेंट ए, एक स्टूडेंट बी, एक स्टूडेंट सी, 3 स्टूडेंट है, तीनों की इंडिपेंडेंट इवेंट्स है। क्योंकि मेरे सॉल्व करने से, ए के सॉल्व करने से बी पे कोई फर्क पड़ेगा क्या, बी के सॉल्व करने से सी पे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तीनों इंडिविजुअली सॉल्व कर रहे हैं, तो तीनों इंडिपेंडेंट इवेंट्स है ना, ये तो एकदम समझ में आती है बात। अब ये तीनों इवेंट्स ए बी एंड सी, तीनों इवेंट्स को सॉल्व, तीनों की अलग अलग प्रोबेबिलिटी दे रखी है। मैं ये बोल रहा हूं कि तीनों स्टूडेंट उस प्रॉब्लम को सॉल्व ही नहीं कर पाए, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। वहां पर आप ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं कि 1 माइनस पी ए वन, 1 माइनस पी ए टू, 1 माइनस पी ए थ्री। मतलब उनकी प्रोबेबिलिटी दे रखी थी, आपको क्वेश्चन में दे रखी है कि ये स्टूडेंट की इतनी प्रोबेबिलिटी है सॉल्व करने की इस क्वेश्चन को, दूसरे की भी दे रखी है, तीसरे की भी दे रखी है, ए बी सी तीनों की प्रोबेबिलिटी दे रखी है। वो यहाँ पुट कर देंगे, ए वन ए टू ए थ्री लिख दिया, ए बी सी लिख देंगे, और इसमें 1 माइनस करके मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो उन तीनों स्टूडेंट से वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई। नन ऑफ देम सॉल्व, मतलब फेलियर ऑफ ऑल दीज इवेंट्स, ऑल दीज इंडिपेंडेंट इवेंट्स, सभी इवेंट्स फेल हो गई, सभी के सभी स्टूडेंट्स या वो जो भी इवेंट्स थी वो सक्सेस ही नहीं हो पाई, किसी ने भी इसको सॉल्व नहीं किया। उसकी प्रोबेबिलिटी को फाइंड करने का फॉर्मूला है। probability of probability of next probability of occurrence of probability of occurrences of at least one of the at least one of the several independent events equal to p इक्वल टू 1 माइनस पी नन। देखो इसका सिंपल फॉर्मूला होता है, अगर आपको एटलीस्ट लिखा आता है, पिछले साल भी आपको एक्सप्लेन किया था, जहां एटलीस्ट आता है उसका अपोजिट होता है 1 माइनस नन। अब देखो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर आपके पास कुछ प्रोबेबिलिटीज दे रही, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एटलीस्ट वन ऑफ द सेवरल इंडिपेंडेंट इवेंट्स, बहुत सारी इवेंट्स आपको दे रखी है, सभी इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, उसमें से कम एक इवेंट हो जाए, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एटलीस्ट वन। इस वर्ड को देखो आप, कम से कम एक, कम से कम एक का अपोजिट होता है कोई भी नहीं, 1 माइनस।
वन माइनस कोई भी नहीं करेंगे मतलब कम से कम एक आ जाता है, इसलिए हम क्या करेंगे, वन माइनस नन। और ये इंडिपेंडेंट इवेंट से, इसका मतलब आप ऐसा लिख सकते हैं, वन माइनस ये वाली टर्म लिख सकते हैं, इसको ऐसा भी लिखा जाता है, वन माइनस P1, वन माइनस P2, शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं ना, वन माइनस Pn। तो इधर क्या लिख लेंगे, वन माइनस P1, वन माइनस P2, वन माइनस Pn। आप ऐसा देखो, इसी क्वेश्चन को अभी बोल रहा था, तीन स्टूडेंट को एक मैथ्स की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए दी हमने, थ्री स्टूडेंट्स और आस्क्ड। ये स्टूडेंट 64 क्यों दिख रहे हैं इसमें? कौन कौन स्टूडेंट है जो क्लास में आगे है, जिनका नाम मैंने कहा है कि मत आओ, फिर भी क्लास में आ रहे हैं? 61 कैसे हो सकते हैं, 64? मैं सभी को भी रिमूव कर देता हूं ना। आदर्श ओझा, आदर्श ओझा, क्या तुम्हें समझ में नहीं आया था मैंने बोला? आदर्श ओझा, रिप्लाई। अटेंडिंग माय क्लास। हाउ मेनी आर देयर, प्लीज लीव माय क्लास। Many times I told you, you don't have the time to ask the parents to send the message. Who are others? Leave the my class, otherwise my time will be wasting. Still some are there. Let me remove. सी, इन बच्चों के कारण हमारा टाइम कितना खराब हो रहा है, देखो। कोई बात नहीं, आज मैं इनको गूगल क्लासरूम में से रिमूव करूंगा। प्लीज इनकी स्क्रीनशॉट ले लो, जो जो भी हैं स्क्रीनशॉट ले लो। आयुष गुलाटी की बात हो गई थी, ठीक है। स्क्रीनशॉट लो अभी। योगिता, यू लिव माय क्लास। अभी मैसेज आया आपका, 3 दिन से मैसेज कर रखा है मैंने। योगिता, यू मूव आउट। आपके पास टाइम नहीं है, मेरे पास भी टाइम नहीं, मूव आउट फास्ट। 2 दिन पहले मैसेज किया, आज मैसेज आया आपका। और कौन है? पूरा टाइम खराब हो रहा है इन बच्चों के कारण, गूगल क्लासरूम में से रिमूव कर दूंगा आज। स्टिल देयर आर स्टूडेंट नॉट हियरिंग मी ना। वेदांत महेश्वरी, let me see how many are there. Wait 1 minute. Pragyesh, Vedant, any other? Pragyesh and Vedant. Pragyesh is there? देखो मेरे पास, मेरा टाइम खराब कर रहे हो, मैं आपसे बोल रहा हूँ, जो स्टूडेंट को मैंने मना कर दिया वो मेरी क्लास में नहीं आएंगे। प्रज्ञेश चतुर्वेदी, प्रियांशु, यू कैन स्पीक। यस सर। तुम क्लास में थे ना? यस सर। वहां जरा रीड करोगे क्या, नाम आप किस किसके स्टूडेंट के नाम हटाए मैंने, जस्ट रीड करो, मैं इधर हटाता जाता हूँ उन्हें। देखो हमारा टाइम 10 मिनट खराब कर दिया इन बच्चों ने। मैं इनको आज गूगल क्लासरूम से, मैं सिस्टर प्रिंसिपल को आज इनकी सब कंप्लेंट करूंगा पूरी।
आरती जैन का नाम है? नहीं है सर। फिर ये क्लास में क्यों है? मतलब उसमें उसमें नाम तो नहीं है जिनको हटाना, जिनको नहीं आना है आज? सर उसका नाम उस लिस्ट में नहीं है, मतलब हाँ वो ठीक है। अटेंड करी थी उसने क्लास। ठीक है, आदित्य जैन? नहीं सर, लिस्ट में नाम नहीं है। अक्षत मुंद्रा? अक्षर शर्मा? अलिफिया? अलीफिया का नाम है। अलिफिया का मैसेज आ गया था, उसी दिन आ गया था, नेक्स्ट डे। ईशा शर्मा का नाम है? हमारी क्लास का पूरा टाइम खराब हो नहीं। रहा है, मैं बाद में देखता हूँ इनको स्टूडेंट्स, अभी तो ठीक है। अभी इतनी बार रिक्वेस्ट करने के बाद भी सारी रिकॉर्डिंग चल रही है, मैं सिस्टर को रिकॉर्डिंग बताऊंगा, देखो सिस्टर इतना कहने के बाद भी दे वर नॉट लिसनिंग मी। They don't have the time to ask with their parents to message the sir. Before yesterday, before 48 hours, I asked you to ask your parents to message me. Why you are attending my class? बहुत वीडियो अवेलेबल है, वहां देख लो आप. You come to the activity, I will see you there in the school campus. Come, I will talk you in the school campus only. I will be coming to the school, na, there I will contact you. I will contact you immediately to your parents also. Let your parents know what you are doing. Because I know out of the 10 parents, they are saying, sir, we don't know what is happening. हमें पता ही नहीं है कब आपकी ऑफलाइन क्लास होती है, कब आपने स्टार्ट कर दिया, कब पढ़ाया, बच्चे में बताते नहीं है. जब तो मैंने मैसेज किया था, पेरेंट्स अगर बोल देंगे देन आई कैन कंसीडर यू. पेरेंट्स से मैसेज क्यों नहीं करा रहे हो आप? क्योंकि आपकी गलती है, इसलिए नहीं करा रहे हो आप मैसेज पेरेंट्स से. और हमारा दूसरों का टाइम भी खराब कर रहे हो, आज का टाइम भी खराब कर दिया 10-15 मिनट. होशियार बन रहे हो आप. रिमार्क नंबर 9, probability of occurrence of at least one of the several independent events. Independent events का मैंने मतलब क्या था कि सब अपने अपने इंडिविजुअल एक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं. मैंने ऐसा बोला कि 3 स्टूडेंट को एक मैथ्स की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए दी. नन ऑफ देम सॉल्व, मतलब ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, सबकी प्रोबेबिलिटी को 1 में से माइनस करके मल्टीप्लाई. कम से कम एक सॉल्व कर दे. हो सकता है ना 3 में से किसी एक ने सॉल्व किया, दोनों ने भी सॉल्व कर लिया, या तीनों ने ही सॉल्व कर लिया. मींस प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड. प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड मींस एट लीस्ट वन द इवेंट्स हैपेंड. घटना घटित हो गई, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड, इवेंट्स हैपेंड. अब इवेंट्स हैपेंड का मतलब कम से कम एक ने भी अगर वो कर दिया तो वो इवेंट हैपेंड हो जाएगी ना. इसलिए इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, 1 माइनस नन वाला फॉर्मूला लगा देंगे. 1 माइनस नन. इसलिए हमेशा ध्यान रखना एटलीस्ट और नन एक दूसरे के अपोजिट होते हैं. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत मिलेंगे आपको इस टाइप के क्वेश्चन. इन फॉर्मूले से जल्दी हो जाएंगे वो. ठीक है, नेक्स्ट. कितने रिमार्क हो गए? PA intersection B intersection C, we can write PA into PB into PC for 3 independent events. ये फॉर्मूला कल लिख दिया था क्या हमने? According to your notes, this remark is already done. Which remark? According to my notes, 11 remarks done already. 7, 8, 9. So, which number will come? इसको 11 लिखो, इसको 10 लिखो, इसको 9. ऐसा नंबरिंग गलत हो गई. ओके, इससे पहले नंबर गलत डाल दिया, शायद मैंने 6 से स्टार्ट कर दिया. ओके ओके ओके. देखो ये गुस्से के कारण हम भी डिस्टर्ब हो रहे हैं ना, बच्चे तो फिर है ही, हो ही रहे हैं, आप लोग भी डिस्टर्ब हो रहे हैं. और जो जिन्होंने अटेंड करी है ना क्लास, उनको मन ही मन में गुस्सा भी आ रहा होगा, बोले यार ये क्या, हमने तो क्लास अटेंड करी और हमारा टाइम भी बच्चों के कारण खराब हो रहा है, सर बोले जा रहे हैं फालतू का. सर
ऐसा लग रहा होगा आपको, लेकिन मैं कैसे कंसिडर करूं जब इन बच्चों को मैंने बोल दिया कि मेरी क्लास में नहीं आना, तो फिर कैसे आ रहे हैं? हाउ डेयर दिस स्टूडेंट्स कैन गो, लेट द कम कॉमर्स स्टूडेंट टू द स्कूल, आई विल चेक जस्ट नाउ, आई विल टेक, आई एम आल्सो टेकिंग द अटेंडेंस टुडे इन माय लैपटॉप, वहां से भी मैं चेक करूंगा, मेरे पास पूरे टाइम की विथ टाइमिंग ईच एंड एवरीथिंग, आई विल केच यू देयर। मजाक बना रखा, पपेट बना रखा है तुमने स्कूल के टीचर्स को ना। पेरेंट्स से बात करूंगा मैं, पेरेंट्स से बात करने के बाद जब आपकी क्लास अटेंड होगी, पेरेंट्स से फोन पे सारी स्थिति बताऊंगा मैं आप लोगों की, क्या कर रहे हो आप। प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट। My 10 minutes lost because of these students today. I will especially ask the sister to remove from the Google Classroom for my maths class. I will take the permission from the sister principal today, then only I will remove. Because they will, every day they will disturb me. Please leave the meeting. Leave meeting. Thank you, sir.